Alright, so hi guys, welcome back to another video and welcome back to my channel. So yeah, as I've been making videos on my experiences only. So in today's video also I'm gonna share with you guys my experience, but in related to stock market, right? So first of all, I would like to tell you कि ना यहाँ पर in India there is a very bad perception of stock market, right? So if in general I talk about my parents, so they didn't stop me to invest in stock market, but they only talk about the negative side of it, right? But अगर हम बात करें after the COVID-19 pandemic, most of the retail investors, if I talk, they have the number of retail investors particularly has jumped and crossed to a certain level, right? Now why? This might be because looking at the positive side of the stock market, the kind of the returns it is giving. So in general, if I talk about the positive side, the stock market do have a really good potential to create wealth, right? So उसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है? नाउ जस्ट फॉर दिस वीडियो टू बी मोर एक्साइटिंग, आई वुड लाइक टू टेल यू कपल ऑफ थिंग्स, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड 10,000 rupees 40 years ago in, let's say, Infosys, then it would have been 700 crores बाय नाउ, ठीक है? सो सुन के ऐसा लगता है कि यार उस टाइम 40 साल पहले, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे, 40 साल पहले कौन ही इन्वेस्ट करेगा, वो भी 10,000 रुपीज 40 साल पहले, ठीक है? सो आई वुड से कि इफ नॉट 40,000, if not 10,000, if you would have invested 1,000, you would be sitting with 70 crores by now. And if you would have invested only 100 rupees back then you would have been sitting with 7 crores by now, ठीक है? तो 100 rupees investing 40 years ago in Infosys, you'll be sitting with 7 crore rupees by now, ठीक है? This is a very simple example that I would like to tell you. Now there is another example as well. So there is a stock called Unitech, and if you would have bought that stock, let us say 20-30 years back, if you would have invested 10,000 rupees, you'll be only be sitting with 100 to 200 rupees by now, okay? So if there is a stock which is compounding your money, there can be a stock which can decrease the amount that you have invested, right? So अगर इधर positive side है तो there is a negative side as well. Now अब related to this, now मैं तुम्हें एक बारी इसका दिखा देता हूँ that if you would have invest, this is nothing but a trading view where you can look at the charts of any particular stock. तो अगर तुम देखोगे कि यार यहाँ पर Infosys का stock at 1996 was at rupees 0.7 पैसे, and now it has reached to 1,814 rupees, and you could say the chart pattern has only gaining, right? It is only increasing, it is not decreasing at any single particular moment. Now this is not decreasing, this is nothing but a correction because ये बहुत ज़्यादा चल चुका था, ठीक है? Now if I look at the Unitech stock, you can see that the stock has been falling from 2006, right? And it is continuously in a falling state, and it has touched 0.4 paise also, right? So what do we get out of these charts? Now in charts से हमें क्या मिलता है? If you can gain, you can lose money in stock market as well. बहुत simple terms में, if you can gain, you can lose money as well. Now it is up to you if you can do a great analysis of a video of a particular stock, and then you invest in that particular stock, right? So अगर मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में बात करूं तो किसी को पता था अगर 1990s और 2000s में कि IT विल गोइंग टू आउट परफॉर्म, और उसने उस टाइम पे इन्वेस्ट करा होता, तो विल बी सिटिंग विद अ गुड मनी बाय नाउ. एंड अगर हमें आज की डेट में पता है दैट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टॉक्स विल गोइंग टू आउट परफॉर्म इन द कमिंग ईयर्स, एंड अगर कोई आज उसमें इन्वेस्ट करता है, ठीक है, ईवी स्टॉक्स में, देन ही वुड बी सिटिंग एट अ with great money in the coming years, right? Because we know that जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली कार है, they will be the electronic vehicles will going to replace them, right? And if you invest in it, you'll be in great profits at particular like 20 to 30 years by now, ठीक है? तो ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल और यू कुड से परसेप्शन था टू लुक एट द स्टॉक मार्केट. नाउ let us look at a person called Sharon. If you know finance with Sharon, that's well and good. If you don't know, he is a person जो स्टॉक मार्केट के बारे में बात करता है, एंड नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट फाइनेंस, रिलेटेड टू फाइनेंस, ईच एंड एवरीथिंग, हाउ यू कैन सेव टैक्सेस ऑन योर इनकम, एंड मतलब बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करता है, राइट? एंड ऑब्वियसली नॉलेजेबल कंटेंट. नाउ उसके लिए मैंने क्यों इसका चैनल खोला है, एंड वाई आई एम सजेस्टिंग इट टू यू, इज बिकॉज कि
this person is from mechanical engineering background, right? And this he has revealed in this latest video only. So he is from mechanical engineering background, and from mechanical engineering background he has a very strong knowledge on finance. So he was telling कि अगर यार मैं कर सकता हूँ तो anybody can do it, right? Anybody can get so much knowledge out of it. You just have to be you just have to have interest in it, right? So this is finance with Sharon's. Okay, so this, like, I particularly like his videos also, so you can go and check it out his videos also. ठीक है, तो मेरा मोटो क्या है कि ही वॉज फ्रॉम अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एंड मैकेनिकल इंजीनियर बिकॉज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का ये परसेप्शन रहता है कि वाई वुड आई गो इनटू फाइनेंस सेक्टर, मैं सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है. इफ यू डोंट नो व्हाट म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट हाउ दे डिफर, तो हम उसके बारे में भी कभी बात कर लेंगे अनदर वीडियो में. बट अभी के परसेप्शन, अभी का पॉइंट क्या है मेरा, दैट इफ ही फ्रॉम अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कैन हैव so much knowledge into finance, then उसका अगर 10% भी हम gain कर लें, then it will be very beneficial for us and for our future as well, right? Now going about like taking going deep into this video, I would like to tell you that how I particularly do stock analysis. ठीक है, I'm not gonna do that for you, but I'm gonna just show you that what are the tools and what are the वेबसाइट्स दैट आई हैव बीन यूजिंग, राइट. तो वो एक सेकंड की चीज़ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, एंड नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो. एंड इस सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में यार हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, द फंडामेंटल ऑफ द स्टॉक्स एंड द टेक्निकल ऑफ अ स्टॉक. ठीक है, सो दीज टू थिंग्स विल बी टॉकिंग इन दिस वीडियो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द फंडामेंटल्स, राइट. सो दिस इज अ साइट कॉल्ड स्क्रीनर, एंड यहाँ पर तुम्हें बस कंपनी का नाम लिखना है एंड तुम्हें उसके बारे में एंटायर डिटेल मिल जाएगी. सो लेट्स से if I want to know more about Infosys, then तुम्हें यहाँ पर उसकी सब कुछ डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी. दैट मार्केट कैप इज इतना करोड़, ठीक है. इट्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट इज इतना, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 27.2, इट्स फेस वैल्यू इज दिस, डिविडेंड ऑल्सो पेइंग, मतलब स्टॉक डिविडेंड भी देता है. तो ये सारी चीज़ें तुम एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पर तुम्हें देखना है, दिस इज नथिंग बट अ स्क्रीन है, राइट. एंड ऑल्सो यू कैन चेक आउट देयर प्रोज एंड कॉन्स, तो तुम देख ही लोगे. You can check out the ranking of the particular stock. So in IT sector, in IT software sector, Infosys ranks second in the entire stock list. ठीक है, and you can also check out the other peers as well. Now going forward, you can see the operating profit of a company. ठीक है, तो अगर तुम operating profit पे जा रहे हो तो तुम देख सकते हो कि the company हमेशा से ही it was in profit, right? हमेशा से ही द कंपनी वॉज इन प्रॉफिट एंड इट इज कंटिन्यूसली इट्स स्टॉक प्राइस इज ऑल्सो गेनिंग. सो एक अगर बहुत सिंपल बारे में बात करें तो अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो उसका स्टॉक प्राइस भी पॉजिटिव में जाने वाला है. ठीक है, ये बहुत सिंपल और बेसिक लैंग्वेज में हमने बात करी है, बट इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं देखने के लिए. ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉसेज, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज बीन रैपिडली इंक्रीजिंग फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, एंड नेट प्रॉफिट तुम देख सकते हो. ठीक है, कंपाउंडेड सेल ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, stock price CAGR, return on equity, you can check it out for 10 years, 5 years, 3 years. ठीक है, बैलेंस शीट अगर किसी को रीड करनी आती है, समझ में आती है चीज़ें क्या है, तो यू कैन लुक आउट द बैलेंस शीट एज वेल. देन द कैश फ्लो, कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, वो सारी चीज़ें तुम देख सकते हो. ठीक है, रेशियोज देख सकते हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख सकते हो कि FII दैट इज फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टॉक में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटेलर्स कितने हैं, कंपनी के ओनर्स खुद कितना इन्वेस्ट करके बैठे हैं इस कंपनी में. तो वो सारी चीज़ें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है स्टॉक के ऊपर. सो दैट यू कैड ऑल्सो चेक, राइट. So this is nothing but the screener where you could look at the fundamentals of a stock, right? So this is for the fundamentals. Now if I talk about the technical analysis or the technicality, how to check the technicality of a stock, right? So उसके लिए यार अगर मैं तुम्हें डेली चेकिंग के लिए बताऊं तो कि तो मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या फिर तुम कुछ भी चीज़ बोल सकते हो उसको. सो उसके लिए यार व्हाट आई पर्टिकुलरली डू, ठीक है. सो लेट अस टेक कि मुझे आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अ रफ आइडिया कि हाउ टुमारोज इंडियन मार्केट विल गोइंग टू परफॉर्म. ठीक है, अगर मेरे को एक रफ आइडिया चाहिए कि कल इंडियन मार्केट कैसा बिहेव करने वाली है, सो व्हाट आई डू फॉर दैट, I particularly check all the indexes of other countries. ठीक है, so for example Dow Jones, if you know what is Dow Jones, if you don't know I'll tell you. If you know what is Dow Jones, well and good. If you don't know डॉ जोन्स क्या है, जैसे इंडिया में निफ्टी 50 है. सो इफ यू डोंट नो व्हाट इज निफ्टी 50, इट इज द टॉप 50 स्टॉक्स इन इंडिया, एंड निफ्टी इज नथिंग बट अ इंडेक्स व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग इंडियन स्टॉक मार्केट, top NSE 50 stocks, right? So that is nothing but Nifty.
Similarly, American market has an index called Dow Jones. So you can check out how Dow Jones have behaved last night. So अगर मैं DAX की बात करूं या फिर यूके की बात करूं, यूके 100 या DAX, ठीक है, निक्की, देन वी हैव पर्टिकुलरली इंडेक्स फॉर एवरी सिंगल कंट्री, राइट? तो अगर मुझे एक रफ आइडिया चाहिए कि इंडियन मार्केट कल कैसा बिहेव करने वाला है, तो मैं इन सारी इंडेक्सेस पे आके चेक कर लूंगा कि अच्छा कल डॉ जोन्स बढ़ा था या घटा था, जिस भी परसेप्शन, मतलब जिस भी व्यू से तुम्हें देखना है वो तुम देख सकते हो, राइट? तो एक रफ आइडिया तुम्हें लग जाता है कि ठीक है, अगर नास्डैक ऊपर था तो तुम कैसे बिहेव करने वाला है इंडियन मार्केट, या जो भी है तुम्हें एक रफ आइडिया मिल जाता है, राइट? तो ये सारे वो वाले इंडेक्सेस हैं, दीज आर द बिगर पिक्चर, ठीक है, ये सारी बिगर पिक्चर है, हर एक कंट्री के इंडेक्सेस है, राइट? देन अगर तुम इन कंट्री के इंडेक्सेस के अंदर आओगे, देन यू कैन चेक कि एक पर्टिकुलर कंट्री विच इज इंडिया, ठीक है, इंडिया का एक इंडेक्स है विच इज निफ्टी, ठीक है, निफ्टी के अंदर भी पर्टिकुलरली 50 स्टॉक्स हैं, एंड वो 50 स्टॉक्स डिफरेंट सेक्टर्स के हैं। नाउ व्हाट आर सेक्टर्स, अगर उसकी बारे में बात करें तो वी हैव इंडेक्स 2 फॉर इट, राइट? मैंने ये बना रखे हैं अपने लिए, सो वी हैव इंडेक्स 2 फॉर इट, दैट इज ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेटल स्टॉक्स, रियलिटी स्टॉक्स, मीडिया स्टॉक्स, फार्मा, पीएसयू बैंक, स्मॉल कैप, मिड फाइनेंस, मिड कैप, देन एनर्जी स्टॉक्स, एंड देन आईटी स्टॉक्स आई आल्सो हैव, देन एफएमसीजी। तो ये सारे इंडेक्सेस हैं, एंड यू कैन चेक कि अच्छा आज आईटी सेक्टर बढ़ रहा है, सो यू कैन चेक कि आईटी सेक्टर के कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं आज, राइट? तो दिस इज फॉर डेली पर्पस, कि तुम आओ अपना इंडेक्स देखो कौन सा बढ़ रहा है, एंड तुम उस इंडेक्स में जाके you can take a trade also. If you not talk about investment, you can take a trade as well. So this is for a general purpose, talking about the indexes of a particular country, और इंडिया में अगर हम बात करें तो ये सारे जो हैं वो इसके अंडर आते हैं, ठीक है? ये सारे इंडेक्सेस हैं फॉर आईटी स्टॉक्स, फॉर पीएसयू बैंक्स, फॉर बैंकिंग के लिए बैंक निफ्टी है, वो इसमें एडेड नहीं है, नीचे है वो, ठीक है? एंड देन यू कैन चेक कि अच्छा अगर मैं बात करूं मेटल स्टॉक्स, तो यू कैन से कि अच्छा मेटल स्टॉक्स आज पॉजिटिव में है, तो यू कैन गो एंड चेक आउट मेटल स्टॉक्स की कौन कौन से तुमने ऐड करे हैं। यू कैन सी कि मेटल स्टॉक्स में हिंडाल्को एंड नेशनल एल्यूमिनियम इज गेनिंग, राइट? तो यू कैन गेट अ रफ आइडिया अराउंड इट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट CNX IT, so this is nothing but the IT stock index. तुम IT स्टॉक इंडेक्स को यार देख सकते हो कि अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो इंडियन IT सेक्टर हैज ऑलवेज इन अ ग्रोथ, राइट? एंड यही तुमने सेम चार्ट पैटर्न देखा होगा किसके अंदर, इन्फोसिस के स्टॉक के अंदर. सो हाउ गुड इन्फोसिस इज कि वो अपने सेक्टर के इंडेक्स की तरह एग्जैक्टली बढ़ रहा है. सो अगर सेक्टर बढ़ रहा है तो दैट मीन्स कि इन्फोसिस विल आल्सो गोइंग टू गेट अप, राइट? तो ये थोड़ी सी चीजें थी दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट related to the technical analysis or a fundamental analysis of a company. And अगर तुम्हें चाहिए कि यार mind please make a video related to what kind of stocks you are having in your portfolio, या फिर what kind of whether you take a trade or do trading as well, मतलब कुछ भी related चीजें हैं, you can comment it out and tell me as well, ठीक है? So this is the rough idea around the stock market, the bigger picture and the smaller picture, right? So this is it guys from my side. I hope you guys liked it because this is a kind of a topic that ज़्यादा लोग इस पे बात नहीं करते हैं, ठीक है? बट आई एज ए जनरल, एज ए ह्यूमन थिंक कि यार इस टॉपिक को थोड़ा सा और एलैबोरेटली एक्सप्लेन करना चाहिए लोगों को, एंड देन इट शुड, ताकि वो हर एक बच्चे तक पहुंच पाए, राइट? सो आई होप दैट दिस वीडियो मेक सेंस टू यू गाइज, यू हैव thoroughly enjoyed it, and if you did, I know what you have to do. You have to like to the video, subscribe to the channel and share the video as well. So thanks for watching.